My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों में आप सबका प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम में अभिवादन करती हूँ। Today we are going to meditate from Leviticus chapter 26 verse 11. आज हम मनन करेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 26 वचन 11 से। In this verse, God says, I will put my dwelling place among you. When will the Lord come and dwell in our midst? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। कब परमेश्वर आकर अपना निवास स्थान हमारे अंदर बनाता है। What a great thing to have God in our midst, my precious children of God. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, परमेश्वर का हमारे बीच होना कितनी महान बात है। There are so many ways to please the Lord. प्रभु को प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। Read John 14:23. It says, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. पढ़िए यूहन्ना 14:23 ये कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। My friends, you have to just love the Lord. मेरे दोस्तों, आपको केवल प्रभु से प्रेम करना है। And you have to read the word of God. और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। Daily you have to do that first. हर दिन आपको सबसे पहले ऐसा ही करना है। As soon as you get up, take the Bible and read it and ask the Lord to come and fill you and speak to you. जैसे ही आप उठते हैं, आप बाइबल लेकर उसे पढ़िए कि वो आकर आपको भर दे और आपसे बातें करे। If you read Psalm 32 verse 8, it says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. That's what the Lord says. यदि आप पढ़ें भजन संहिता 32:8, ये कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस तरह से प्रभु कहता है। Yes, by reading the word of God, you are honoring God and He will be pleased to come and stay with you. वचन पढ़ने के द्वारा आप प्रभु का आदर करते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ आकर आप में वास करता है। If you love the Lord, He will be with you and teach you and guide you beautifully. अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो आपको बड़ी सुंदर रीति से ये सब अगुवाई करेगा और सिखाएगा। If you read Acts 10th chapter 44 to 46, we read about a man called Cornelius. यदि आप प्रेरितों 10 पढ़ेंगे, वचन 44 से लेकर 46 तक हम कर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं। He sought the Lord diligently. वो प्रभु को बड़ी ईमानदारी से खोजता था। That's why he sent his servant Peter and talked to him what he has to do, and the Lord blessed the whole family because of that. इसलिए उसने अपने दासों को पतरस के पास भेजकर पूछा कि मैं क्या करूं। इससे उसका पूरा परिवार आशीषित हुआ। My friends, you can also receive the same blessing. मेरे दोस्तों, आप भी इसी तरह की आशीष पा सकते हैं। Read the word of God. प्रभु का वचन पढ़ें। Meditate the word of God. प्रभु के वचन पर मनन करें। And please the Lord. प्रभु को प्रसन्न करें। Whatever you do, you should have a pleasing life before Him. जो भी आप करें, उसे प्रसन्न करने वाला जीवन उसके सामने रखें। Then God's presence will be with you all the time. तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा रहेगी। As He blessed Cornelius, He will bless you and your family in a beautiful way. जिस तरह उसने कर्नेलियुस को आशीष दी, वो आपको और आपके परिवार को भी उसी तरह से आशीष देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for your wonderful presence. पिता, तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Touch the people's heart, Master. स्वामी, लोगों के दिलों को छू ले। Let them be drawn to you, O Father. ये तेरे पास खींचे चले आएं। Let them come closer to you, O Father. पिता, ये तेरे करीब आ जाएं। Let them read the word of God with all fear of God. परमेश्वर के भय के साथ ये परमेश्वर का वचन पढ़े। Fill them with your presence. इन्हें अपनी उपस्थिति से भर दे। Fill them with your Spirit, Holy Spirit. इन्हें अपनी पवित्र आत्मा से तू भर दे। Lead them and guide them in a beautiful way. सुंदर रीति से इनकी अगुवाई कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள். ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದು मिस చేయకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए।
your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Big ball was there. Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा। There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।